CL9 के प्रैक्टिकल में हमने लास्ट टाइम देखा था कि हाउ what are the basic concepts related to first practical assignment, that is to develop any distributed application through implementing client server communication programs based on sockets and RMI techniques. Okay, now we have seen what is actually the distributed application. So distributed application is nothing but the application which consists of multiple clients that can communicate with the servers or different machines through the network. So multiple clients are there or multiple servers are there. So when client sends a particular request, that request has been sent to the server, who will resolve that request, and the reply or the message will be again sent to the client. Okay, now there are three main application architecture for the distributed applications: the client server architecture, broken pattern architecture, and service oriented architecture. So the client server architecture, it is nothing but when the client specifically there are some clients are there, some servers are there, and the client on one side is creating some request in which the server acts as a function of the request and complete that task. Okay, this is the client server architecture. Then broker pattern architectures. So when client want to perform some request or send some request, that request will be received by the broker intermediate layer, and broker, after receiving that request or task or service, that will redirect to the server which is appropriate to execute that task. ऐसे सर्वर के पास जाएगा जो सर्वर क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट, वो टास्क है वो कंप्लीट कर सकते. एंड example of broken pattern is Corba. Then service oriented architecture, in which each service can be performed or formed together to create an application. So we are again directing to the our assignment statement. We have to develop the distributed application by implementing the client server communication. So these three distributed application architectures are there, that is client server architecture, then broker pattern architecture, and SOA, that is service oriented architecture. So in between among the three distributed application architectures, we have to implement the client server communication. Okay, and it is based on the Java sockets and RMI techniques. So first of all, we have seen how we can implement it with the help of Java sockets. So what do you mean by sockets? Sockets, we can say sockets are the small programs which is used to communicate between the two different processes on the same or different machines. Okay, socket क्या है? प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम है ऐसा जो क्या कर सकता है, who can allow communication between the two different processes. दो प्रोसेसेस का अगर कम्युनिकेशन करना है, दैट कम्युनिकेशन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ सॉकेट, which can be on the same machine or different machine. Okay, तो सॉकेट कहाँ पे यूज होता है? It is used in client server application framework. Okay, now for socket programming, we have seen that TCP and UDP socket programming is there. So TCP is the transmission control protocol, and which is the application connection oriented, and UDP is user datagram protocol, which is connectionless. Okay, now when we are dealing with the socket programming, तो यहाँ पे क्या है कि client side and server side दो different machines पे क्या है, the communication is to be happen in between two different machines. So दो machines का communication करना है, so one will be the client, as we are seeing client server architecture. तो client क्या send करेगा? Client request send करेगा, and then server will complete that request, or client will send a task to the server. सर्वर क्या करेगा? वो टास्क क्या करेगा? कंप्लीट करेगा.
तो क्लाइंट साइड का सॉकेट प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एस्टेब्लिश अ सॉकेट कनेक्शन। हमें क्या एस्टेब्लिश करना है, सॉकेट कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। नाउ टू कनेक्ट टू अनदर मशीन वी नीड socket connection, and a socket connection means that the two machines have information about each other's networks location, IP location and TCP port. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमें सॉकेट क्रिएट करने के लिए मशीन का आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, एज वेल एज वी हैव टू डिफाइन द सॉकेट, सॉरी पोर्ट हमें डिफाइन करना है. Okay, now for opening the socket we are going to use socket is equal to new socket. Okay, now that means it will create new constructor for socket class का नया constructor होगा, और this socket class is included in java.net package. Okay, then client side पे socket kriya, the first argument is the IP address and second argument is TCP port. Then communication is done and finally we have to close the connection. Then at the server side, so server sides के लिए क्या होगा, for server application two sockets are needed. First socket is server socket which waits for the client request. Okay, and a plain old socket to use for communication with the client. मतलब एक connection establish करने के लिए रहेगा, second will be for the communication with the client. Then output stream method use की जाएगी to send the output through the socket, and finally we have to again close the connection. Okay, now for this we need java.net package. Okay, and specifically you have to remember this figure as we are going to implement with this only with the TCP. Okay, now client side पे क्या है, socket है, socket का constructor बनाएंगे हम, then it will send connection request to the server by using connect. Okay, then whatever the message the client want to send to the server, that will be written again the message from the server. Once the server completes the task, उसका जो complete किया हुआ message है, or we can say the output, that will be read by the client and finally close the connection. Okay, close the socket. सर्वर साइड पे क्या होगा, सर्वर साइड पे फर्स्ट सॉकेट का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, फिर बाद में बाइंड करेंगे, लिसन, एक्सेप्ट, then read the message. Once the connection has been established with the client, then server will read the message. Server क्या करेगा, message read करेगा, then perform some computation over the server side, then write that message, and write करने के बाद वो कहाँ पे आएगा, that message will be given to the client. Okay, and again read that message and close the socket connection. Okay, now ये steps आपको याद रखने हैं. So यहाँ पे first of all we will see what is the server side programming. Okay, तो server side programming के लिए first of all these programs it is given in CL9 syllabus. CL9 के syllabus में दिया है कि ये जो programs है ये हमें क्या करने हैं, we have to implement this program using Java 8. Java 8 से वो program क्या करने हैं, implement करने हैं. Okay, and अगर मैं यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रन करती हूँ तो वन सिंगल प्रोग्राम कैन बी रन यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. मतलब सर्वर डॉट जावा का प्रोग्राम रन होगा, देन क्लाइंट डॉट जावा का प्रोग्राम रन होगा, लेकिन उनका जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होना चाहिए वो नहीं हो रहा. सो वी नीड टू रन दिस प्रोग्राम इन इक्लिप्स पे हमें ये प्रोग्राम रन करना है. ठीक है, नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन हियर इन द कोडिंग दैट import java.io.buffer reader. Okay, now buffer reader is used to read text from the character based input string. जैसे हमें मैसेज रीड करना है तो इसके लिए क्या लिया यहाँ पे,
बफर रीडर इंपोर्ट किया है। देन हम अभी क्या करने वाले हैं, सर्वर का प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्वर का क्लास बनाया, देन प्राइवेट स्टैटिक सॉकेट बनाया। देन यहाँ पे है कि हमें क्या करना है, वी नीड टू डिफाइन द पोर्ट। तो 25,000 इज द पोर्ट एंड सर्वर सॉकेट का क्या बनाया हमने, नया कंस्ट्रक्टर बनाया और उस कंस्ट्रक्टर को क्या पास किया है, पोर्ट नंबर पास किया। ओके, देन मैसेज सेंड किया कि सर्वर इज स्टार्टेड एंड लिसनिंग टू द पोर्ट 25,000। नाउ व्हाट इज दिस पोर्ट, ये पोर्ट क्या है, जिससे क्या हो जाएगा, द कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर will happen by using this port number. इस पोर्ट नंबर से क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। ओके, नाउ while true, so why we have taken while true, because server is running every time and जब तक सर्वर रन हो रहा है तब तक क्या करना है, सर्वर ने क्या चेक करना है, वेदर एनी रिक्वेस्ट इज देयर फ्रॉम द क्लाइंट साइड, क्लाइंट साइड से कुछ रिक्वेस्ट है क्या। तो इसीलिए हमने क्या लिया है, while true, जब तक सर्वर रन हो रहा है तब तक, ठीक है। देन हमें क्या करना है, सर्वर जब तक रन हो रहा है तब तक क्या कर रहा है सर्वर इज लिसनिंग टू द पोर्ट 25,000, ठीक है। 25,000 पोर्ट नंबर पे कुछ मैसेज आया है क्या, वो सर्वर चेक कर रहा है। हाउ सर्वर इज गोइंग टू चेक, हाउ ही सर्वर इज रीडिंग मैसेज फ्रॉम द क्लाइंट, सो इट इज with the help of socket. Okay, socket is equal to server socket dot accept. Okay, now server socket class ये क्या है, it provides the system independent implementation of the server side. client server socket communication और connection में system independent इम्प्लीमेंटेशन सर्वर साइड का कौन प्रोवाइड कर रहा है, सर्वर सॉकेट प्रोवाइड कर रहा है। ओके, नाउ यहाँ पे क्या है कि डॉट एक्सेप्ट मेथड हमने यहाँ पे यूज की, डॉट एक्सेप्ट सॉकेट इज इक्वल टू सर्वर सॉकेट डॉट एक्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट एक्सेप्ट क्या कर रहा है, एक्सेप्ट क्या कर रहा है, अगर आपको ये डायग्राम याद है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट दिया है, देखिए एक्सेप्ट। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब क्या, सर्वर क्या करेगा, पोर्ट नंबर 25,000 को कुछ मैसेज आया है क्या, वो रीड कर रहा है, एंड if is there any message on this port number, then it will accept that message. Okay, now next is input stream is is equal to socket dot get input stream. Input stream क्या जिसमें रीड हो रही है, in the form of bytes, it is read in the variable is. Okay, then input stream reader isr is equal to new input stream reader is. तो बाइट का जो मैसेज है वो कैरेक्टर मैसेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, इनपुट स्ट्रीम एंड इनपुट स्ट्रीम रीडर। इसमें क्या है, इनपुट स्ट्रीम गिव्स बाइट्स एंड इनपुट स्ट्रीम रीडर गिव्स द कैरेक्टर्स। ओके, तो कैरेक्टर में मैसेज आ गया, देन स्ट्रिंग नंबर, ओके, br डॉट रीड लाइन, तो रीड लाइन मेथड से हम क्या कर रहे हैं, मैसेज रीड कर रहे हैं। ओके, एंड वी आर प्रिंटिंग मैसेज दैट system dot output dot println message received from client and it is stored in number. Okay, number variables, number string variable. Okay, now once we have received message from the client के साइड से मैसेज हमें मिला है, now ये मैसेज मिलने के बाद क्या हुआ है, we have to perform some calculation at the server side. सर्वर साइड पे वो रिक्वेस्ट क्या करनी है, प्रोसेस करनी है। तो हमने यहाँ पे एकदम सिंपल एग्जांपल लिया है कि क्लाइंट के साइड से क्या होगा, एक नंबर दिया जाएगा एंड एट द सर्वर साइड दिस नंबर विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड this multiplication, result of multiplication will send to the client again.
ओके, तो रिटर्न अभी हमें क्या मिला है क्लाइंट से, यहां तक क्या है, अप टू दिस यहां तक क्या हुआ है, वी हैव यहां तक क्या हुआ है कि हमने क्या किया है, क्लाइंट से मैसेज जो है वो रीड किया है। नाउ हमें वो मैसेज को क्या करना है, प्रोसेसिंग करना है। तो प्रोसेसिंग करने के लिए रिटर्न मैसेज आएगा। सो रिटर्न मैसेज की स्ट्रिंग हमने डिफाइन की है, ट्राई कैच लिया है, एंड हियर हमारा जो मैसेज है, नंबर है, दैट इज गिवन इन द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग है, इसके लिए हमें किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, नंबर इन इंटीजर फॉर्मेट, इट इज कन्वर्टेड बाय पार्स इंट इनटू द इंटीजर। ओके, एंड रिटर्न वैल्यू क्या आएगी, जो भी कुछ नंबर रहेगा उसका मल्टीप्लीकेशन विद द 2। अगर 4 नंबर दिया है तो 4 into 2 8 will be written. Okay, now 8 is in the 8 is in the इंटीजर फॉर्मेट। 8 किस में है, इंटीजर फॉर्मेट। मैसेज कौन से फॉर्मेट में सेंड कर रहे हैं हम, मैसेज विल बी सेंड इनटू द स्ट्रिंग फॉर्मेट। ठीक है, इसीलिए स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, तो डॉट वैल्यू ऑफ किसके लिए यूज किया जाता है, इट विल कन्वर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज इनटू द स्ट्रिंग। कौन से भी वैल्यूज है वो किस में कन्वर्ट करेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। ओके, एंड इफ द इनपुट given was not a number, so the message will be thrown like this, please send a proper number. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या किया हमने, इस मिडल पार्ट में क्या किया है, प्रोसेसिंग किया। नाउ नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, सेंडिंग द मैसेज रिस्पॉन्स बैक टू द क्लाइंट। ओके, क्लाइंट के पास ये मैसेज क्या करना है, सेंड करना है, इसीलिए हमने यहाँ पे यूज किया है आउटपुट स्ट्रीम। आउटपुट स्ट्रीम सॉकेट डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम, देन आउटपुट स्ट्रीम राइटर यूज किया है, उसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया और उसके लिए इनपुट लिया है ओएस। देन बफर राइटर, इसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, बफर और bw डॉट राइट करके क्या किया है, रिटर्न मैसेज। रिटर्न मैसेज में क्या है, रिटर्न मैसेज हैज द स्ट्रिंग और स्पेसिफिकली द मल्टीप्लिकेशन। अगर 4 इनपुट दिया है तो 4 into 2 8 will be in the 8 value will be stored in the return message in the form of string। तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 एंड फ्लश कर लिया, बफर को क्या किया, फ्लश किया। ओके, और यहाँ पे क्या किया है, सॉकेट डॉट क्लोज द कनेक्शन। तो सर्वर साइड पे हमने क्या किया है, सर्वर साइड हैज परफॉर्म्ड फंक्शंस as accept। ओके, बाइंड किया है, बाइंड करने के बाद तो एक्सेप्ट क्या करता है, इट विल लिसन फॉर द पोर्ट नंबर। बाइंड क्या करेगा, बाइंड सर्वर सॉकेट टू अ स्पेसिफिक एड्रेस which is given in the IP address and the port number। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे जो फंक्शंस है, सॉकेट किया, सॉकेट ये किया, फिर बाइंड किया, लिसन, एक्सेप्ट, रीड, राइट, रीड एंड देन क्लोज, ये फंक्शंस हमने क्या क्या किया है यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, नाउ ये हो गया सर्वर साइड। नाउ फॉर क्लाइंट साइड, क्लाइंट साइड पे क्या हो गया, क्लाइंट साइड पे क्या करना है, सॉकेट एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, तो स्ट्रिंग होस्ट, होस्ट की स्ट्रिंग हमने क्या किया, मैंने जैसे पहले बोला था, इसके पहले इसमें फर्स्ट प्रैक्टिकल में कि हम लोकल होस्ट पे ही रन करने वाले हैं। तो होस्ट क्या है, लोकल होस्ट। पोर्ट नंबर शुड बी सेम दोनों क्लाइंट और सर्वर प्रोग्रामिंग का पोर्ट नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंड हम सॉकेट का नया कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे, उसमें क्या पास करना है, एड्रेस एंड पोर्ट। ठीक है, एड्रेस में क्या है, इट इज गिवन एज लोकल होस्ट एंड पोर्ट में क्या है, 25,000। ओके, नाउ आउटपुट स्ट्रीम वी हैव टू सेंड द मैसेज टू द सर्वर। तो मैसेज पहले क्लाइंट से क्या जाएगा, सर्वर को जाएगा।
तो सर्वर को मैसेज सेंड करने के लिए सॉकेट डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम, ओके, आउटपुट स्ट्रीम राइटर यूज किया है, देन बफर राइटर का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया एंड स्ट्रिंग नंबर इज इक्वल टू 2। नंबर क्या कंसिडर किया? 2 कंसिडर किया। तो स्ट्रिंग सेंड मैसेज, सेंड कौन सा मैसेज सेंड करना है? 2 सिलेक्ट किया है, 2 नंबर आर सिलेक्टेड, दैट मैसेज शुड बी सेंड टू द सर्वर। तो इसीलिए क्या किया है, बफर राइटर डॉट राइट सेंड मैसेज फ्लश किया है एंड सिंपली मैसेज प्रिंट किया है कि मैसेज सेंड टू द सर्वर। ओके, नाउ इनपुट स्ट्रीम गेट द रिटर्न मैसेज फ्रॉम द सर्वर। अभी सर्वर से जो रिजल्ट आया है, जहां सर्वर साइड पे जो प्रोसेसिंग हुई है, उसका रिजल्ट कहाँ पे आना चाहिए? क्लाइंट साइड पे आना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, इनपुट स्ट्रीम is इज इक्वल टू सॉकेट डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे क्या किया है, बाय यूजिंग द br डॉट रीड लाइन। रीड लाइन से क्या किया है, बफर रीडर में जो भी मैसेज रहेगा बफर में वो मैसेज रीड करेगा एंड इट विल प्रिंट द मैसेज रिसीव फ्रॉम द सर्वर, दैट इज प्लस मैसेज। प्लस मैसेज में क्या रहेगा, सर्वर साइड पे नंबर गया 2, देन सर्वर हैज रीड दैट नंबर, सर्वर ने रीड किया वो मैसेज, 2 मैसेज हैज बीन रिसीव फ्रॉम द क्लाइंट। नाउ प्रोसेसिंग होगा सर्वर साइड पे, क्या प्रोसेसिंग होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4, 4 नंबर क्या होगा, 4 number will be again sent to the client with the help of output stream, ठीक है, और client will read that message with the help of input stream reader। input stream reader से क्या करेगा, client वो message read करेगा and at the client side we have to print the message from the server, that is 2 into 2 multiplication, 4 is the result, okay, and finally we have to close the socket, ठीक है। नाउ अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, इक्लिप्स पे ये प्रोग्राम रन करना है। सो फॉर रनिंग अ प्रोग्राम ऑन इक्लिप्स, ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू कंपाइल बोथ द प्रोग्राम्स, दैट इज client.java and server.java on the 2 different terminals or tabs। दो अलग अलग टैब्स पे हमें ये प्रोग्राम क्या करना है, रन करना है, ठीक है, कंपाइल करना है। उसके बाद क्या करना है, we have to run the server program first, then run the client program, okay, and जो भी कोई मैसेज आप क्लाइंट विंडो से टाइप करोगे वो मैसेज सर्वर साइड पे प्रोसेसिंग के लिए जाएगा एंड देन सर्वर पे प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिजल्ट है वो क्लाइंट साइड पे आएगा एंड वी कैन प्रिंट द रिजल्ट फ्रॉम द क्लाइंट साइड प्रोग्राम, ओके। तो ऐसा रिजल्ट आता है सर्वर स्टार्टेड, ओके, क्योंकि हम पहले क्या कर रहे हैं, सर्वर का जो प्रोग्राम है सर्वर डॉट जावा रन कर रहे हैं पहले, ठीक है। तो सर्वर प्रोग्राम रन होगा एंड सर्वर डॉट जावा में क्या था, सर्वर स्टार्टेड एंड लिसनिंग टू द पोर्ट, ओके, एंड मैसेज रिसीव फ्रॉम द क्लाइंट इज 2, ये सर्वर साइड पे हो गया, एंड मैसेज सेंड टू द क्लाइंट इज 4, मतलब मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, 2 into 2 मल्टीप्लीकेशन हुआ, उसका रिजल्ट आ गया 4, ठीक है। अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये प्रोग्राम रन करते हैं, ठीक है, तो ये है क्लाइंट साइड का प्रोग्राम और ये है सर्वर साइड का प्रोग्राम, सेम प्रोग्राम है, ठीक है। तो सेम प्रोग्राम है, यहाँ पे क्या है 25,000 पोर्ट यूज किया है, ठीक है, सर्वर स्टार्टेड लिसनिंग। अगर ये मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करती हूँ, so after executing this program, okay, यहाँ पे जो मैसेज प्रिंट किए हैं, सर्वर स्टार्टेड लिसनिंग, क्लाइंट मैसेज नंबर टू रिसीव इट्स डबल, ठीक है। और यहाँ पे क्लाइंट साइड पे अगर ये प्रोग्राम मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करती हूँ, सो एक्चुअली यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये जो है कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है,
ठीक है, इन द सर्वर एंड क्लाइंट, सर्वर और क्लाइंट में कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, इसके लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। एंड यू हैव टू रन दिस प्रोग्राम ऑन इक्लिप्स, ये प्रोग्राम आपको कहाँ पे रन करना है, इक्लिप्स पे रन करना है। ओके, एंड ये प्रोग्राम इक्लिप्स पे रन करने के बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू रन server.java एंड client.java ऑन 2 डिफरेंट टैब्स, 2 डिफरेंट टैब्स पे आना चाहिए। और पहले आपको क्या रन करना है, server.java रन करना है, उसके बाद client.java रन करना है एंड check whether the message has been appearing or not. ओके, कुछ प्रोसेसिंग हो रहा है कि नहीं वो आपको देखना है एंड सेंड द स्क्रीनशॉट टू मी, स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करो कि क्या हुआ है, आपका प्रोग्राम रन हो रहा है या तो फिर इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम। ओके, कुछ प्रॉब्लम है, सो विल यू ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम।